Welcome everyone to the Vidyahish channel, and congratulations to the IIT aspirant for the IIT 2026 and myself Mayank Daya. Today we are going to solve the entire IIT chemistry section, and according to the students' opinion, the paper was slightly tricky. So let's focus on the paper. So this was the first question in the chemistry, that is the which of the following octahedral complexes highest spin only magnetic moment. So basically spin only formula for spin only magnetic moment was n plus 2, the standard formula, standard one, standard formula. So as we see it, the all the species one by one. So this is CrH2 4 OH whole twice. So the charge on Cr, we have to calculate the charge on the central metal atom. So as we see is a neutral one, so 0. But OH is OH minus, so Cr is in plus 2 state. So normal configuration of Cr is D5 S1, and so it says in plus 2, so it's D3. Okay, D3 in plus 2 state. And the second point is that vanadium H2 4 I2. So I say here also I2 is electronegative species and there is a positive charge also. So vanadium is in plus 3. So vanadium is in plus 3 state. So normally vanadium is D3S2, but now it's vanadium is in plus 3, it's in D2 state. So, and if we see the C option, that is iron, the iron is in this is considered as strong field ligand. We'll consider the ligand nature later on. First, we'll calculate the charge and settlement. And this is has zero charge. This is -1. So it's iron is also in plus 3 nature. So as we see, iron NH4, NH3 whole 4, Cn2, Cn2 positive is there. So Fp is in plus 3 state. So Fp is in plus 3 state, so it's D6S2 in neutral state, Fp, but in plus 3 state, it's D5, Fp is in D5 state. And let's move to the cobalt. Similarly, but cobalt has -2 this, so cobalt is in plus 2 state. Okay, so cobalt is in plus 2 state, so it's D7S2. And if it's plus 2, so it has d7 electrons, d7 plus 2 state has, and cobalt has this state. So if we fill the orbitals accordingly, so we can see that, but if anyone कोई स्टार्टिंग से ही जाके जंप कर दे सीधा कि इसमें तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका सबसे ज्यादा होएगा स्पिन ऑन लिगेंड मोमेंटम। बट ऐसे नहीं होता, इसको फर्स्टली हम फिल करना है क्योंकि जो लिगेंड्स हैं उनका भी फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बहुत जरूरी है। तो जैसे पहले केस में अगर हम देखते हैं, ये पहले सबसे पहले हम जैसे 7 से देखते हैं, डी ऑप्शन से शुरू करते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको फिल कैसे करेंगे? ऑक्टाहेड्रल जो होता है उसकी फिलिंग ऐसी होती है T2G और EG लेवल में। तो पहला 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्यों अब ये ऐसे फिल हुआ? ऐसे फिल होने का इसका रीजन क्या था कि इसके पास जो है वो ये दोनों जो है कोबाल्ट और ये तो इतने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, सिर्फ कार्बन डोनर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, प्लस 2 स्टेट में। तो इस वजह से ये NH3 जो है एक वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, उसकी पेयरिंग हो जाएगी। तो इस वजह से ये जो है इसके पास 3 अनपेयर्ड है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ये वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सॉरी, इन जिसमें कि Fp है D5 स्टेट में। तो भाई हमारे पास सी ऑप्शन में Fp है D5 स्टेट में, लेकिन इट इज प्लस 3 नेचर। प्लस 3 नेचर का है तो नाइट्रोजन भी, NH3 भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और Cn भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये किस तरीके से होगा? 1 2 3 4 एंड 4, बट ये यहाँ ऊपर ना भर के ये नीचे आएगा सीधा आपका यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है। उसके बाद हमारा बी वाला जो है, बी ऑप्शन में हमारे पास है वेनेडियम। वेनेडियम जो है वो D2 स्टेट में है, यानी +3 में। तो वेनेडियम D2 में है और +3 में है, तो वेनेडियम को कैसे भरेंगे हम? अ, ऐसे 1 2 से 2 1 पेड़। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम था हमारा D5 S1 स्टेट में। सो ये डी सॉरी इट्स अ मिस्टेक, तो ये D4 स्टेट में होएगा। D4 स्टेट में होएगा। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कुछ ऐसे फिल होंगे, 1 2 3 एंड 4, एंड ऑल आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, तो करेक्ट आंसर भी ये होएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने चाहिए होंगे एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रिक्वायर होंगे एक रिडक्शन के लिए, जो कि है Cr2O7 होल टू नेगेटिव टू कन्वर्ट करने के लिए Cr3 पॉजिटिव में। तो बेसिकली अगर यहाँ से पहले ही सबसे पहले हम देखें तो ये स्टैंडर्ड एक रिडॉक्स इक्वेशन ही है। तो सबसे पहले रिडॉक्स इक्वेशन जो कहाँ से आया है, ये रिडॉक्स से आया है। तो रिडॉक्स से आया है, तो हम जैसे अगर सॉल्व करते हैं तो इसको लिखते हैं, हमें क्या करना है सबसे पहले हम दोनों तरफ लिख देंगे। Cr2O7 टू नेगेटिव को, होल टू नेगेटिव को हमें कन्वर्ट करना है टू Cr3 पॉजिटिव में, इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, बैलेंस क्रोमे में बैलेंस इक्वेशन है क्रोमियम एटम की, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है। उसके बाद अगर ऐसा है तो सबसे पहले हम वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे एक तरफ। तो लेट सपोज अगर हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं, तो हमने यहाँ पे 2Cr3 प्लस प्लस 7H2, ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करें टू बैलेंस दीज वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए था इस तरफ में राइट हैंड साइड पे। तो ये अगर अपर इधर प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स ज्यादा है तो उसको बैलेंस करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे। तो नेक्स्ट बैलेंस्ड इक्वेशन वुड बी +14H प्लस गिव राइज टू 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। ये हो गया। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज वैसे बैलेंस कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो चार्ज है, लेफ्ट हैंड साइड का जो चार्ज है वो है -2 प्लस 14 प्लस 1 इज इक्वल्स टू में +12, एंड राइट हैंड साइड का जो है, राइट साइड का जो है वो है 2 प्लस 3 प्लस 7 0 इज इक्वल्स टू +6। ठीक है, तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स का वो देना पड़ेगा इसे एक चार्ज बैलेंस करने के लिए। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स का अगर हमें सब्स्टिट्यूशन देना पड़ेगा, तो हमारी जो इक्वेशन है जो होएगी फाइनल इक्वेशन, वो क्या होएगी, वो बेसिकली उसमें वो इलेक्ट्रॉन हम किसी मेटल के थ्रू दे सकते हैं, ऐसे तो नहीं दे सकते। तो बेसिकली अगर हम देखें स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो होती है Cr2O7 टू नेगेटिव प्लस 6Fe2 पॉजिटिव प्लस 14H प्लस गिव राइज टू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 7H2 टू बैलेंस द चार्ज। तो इसलिए हमें प्रोटॉन्स कितने लीड हुए, 14, इलेक्ट्रॉन्स कितने लीड हुए, 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 14 एंड 6। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये पढ़ के काफी बच्चों के मन में अलग अलग डाउट आता है कि हमें इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर सिग्मा और पाई में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होता है, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा डिक्रीज होता है, ये हमें क्लासेस में बताया होगा। और अगर होमोके में होमोके में और अगर होमोके में सिग्मा स्टार और पाई स्टार के में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहलाया जाता है, अब अगर हम F2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखें, N2 का देखें, सबका अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है ऑफ F2 क्या होएगा, ठीक है, अगर हम दोनों तरफ देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ F2, तो वो क्या होएगा, F एक इस तरफ आ जाएगा, सॉरी ये मेरी हैंडराइटिंग के लिए आई एम वेरी सॉरी, ये F इस तरफ हो जाएगा, F इस तरफ हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे 2s से आ जाएंगे तो एक सिग्मा 2s हो जाएगा,
सिग्मा 2s हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s हो जाएगा, और कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, 4 हो गए। ऐसे ही यहाँ पे सबसे नीचे जो ये आएगा, ये सिग्मा 2p होएगा, फिर ये पाई 2p हो जाए, पाई 2p एक्स और 2p वाई हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे ये पाई स्टार 2p हो जाएंगे, ऐसे होएगा। और फिर ये सिग्मा स्टार 2p हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होएगा। अब इसकी फिलिंग कैसे होगी? टू दो 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 चार यहाँ पे भर गए, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इस तरीके से भरेगा, ऐसे ही भरेगा ना। तो अगर ऐसे भरेगा तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? पाई स्टार में, पाई स्टार ऑफ होमो में। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्बिटल ये है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होएगा? बढ़ेगा। सीधा आंसर F2। अगर हम इसमें चाहें तो हम दूसरे वाले जो है C2 और B2 इन सब के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलो, सबकी कंफ्यूजन ना रहे, तो इसके लिए हम N2 का चेक करके देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, N2 का क्या रहता है? अगर हम देखें तो N2 का ये रहता है, सबसे पहले सपोज यहाँ पे नीचे बनाते हैं, सिग्मा 1s आ गया ये, फिर ये सिग्मा स्टार 1s आ गया, ये एक एन का साइड हो गया, ये एक एन का साइड हो गया। मैं बहुत रफ बना रहा हूँ, आप लोगों ने क्लासेस में पढ़ा होगा। सिग्मा 2s हो जाएगा, फिर सिग्मा स्टार 2s हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके फिर यहाँ पे आता है 2px 2py, 2px 2py, और यहाँ सिग्मा 2pz। ठीक है, ये पाई होते हैं दोनों। और फिर यहाँ पे आ जाएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ठीक है, और सिग्मा स्टार 2pz। जैसे होता है ऐसे। तो इसमें अगर हम भरते हैं तो कितने हो जाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, और एक ये इसमें, तो इसमें भी क्या कहते हैं, कुछ खास इलेक्ट्रॉन उसमें गए नहीं। पाई स्टार में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो कम होएगा, कंपैरेटिवली लेस होएगा। ऐसे ही अगर हम देखें C2 का, तो उसमें और नीचे लेवल भरेगा, B2 का उसमें और नीचे लेवल भरेगा, तो इसका F2 आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। हलवा क्वेश्चन। अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों को लग सकता है बहुत ज्यादा ट्रिकी, तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक सिनर्जेटिक बॉन्डिंग पे और बैक बॉन्डिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्पीशीज दी हुई है Mn2CO10। सबसे पहले स्पीशीज लिखते हैं हम, क्या होता है Mn2CO10। ये स्पीशीज जो है, हम इसको अगर लिखें तो ये कुछ ऐसे होएगी, Mn एंड CO। अगर हम लिखें CO बेसिकली इट्स ऑर्गेनोमेटेलिक स्पीसी। CO 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 CO। थोड़ा सा हमें यहाँ पे इसको सीधा करने की जरूरत है, दैट इज CO। ठीक है, ये हो गई। अब अगर ये स्पीसीज हो गई हमारे पास में, तो इसमें जो क्या इसके हमारे को पता है कि जो CO लीगेंड है, इधर पाई एक्सेप्टर लीगेंड। ठीक है, पाई एक्सेप्टर लीगेंड जो जिसके पास प्रेजेंस होती है पाई स्टार ऑर्बिटल की। अगर हम इसका कुलसन डायग्राम देखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को उसी को कुलसन डायग्राम कहते हैं, वो देखें तो पता चलेगा इसका पाई स्टार प्रेजेंस ऑफ पाई स्टार ऑर्बिटल होता है, एम्प्टी पाई स्टार वो भी। ठीक है, हम इसे यहाँ लिख देते हैं एम्प्टी। तो इसके केस में क्या होता है, जो Mn है वो एम्प्टी नहीं है। इसके केस में Mn का पूरा बॉन्ड बना रहा है ना हमारे साथ, इसके साथ Mn जो है। ठीक है, और इसका जो MM बॉन्ड है वो भी एक है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये क्या होता है, इस केस में क्या होएगा, जो ये Mn है इस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इसमें डोनेट करेगा, इसके पाई स्टार में। ऑब्वियसली अगर किसी के पास कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी का पाई स्टार वीकेंड है, एम्प्टी ऑर्बिटल, वो एक्सेप्टर, नेचर ही उसका एक्सेप्टर है, तो इसमें मेटल तो लीगेंड होएगा, डोनेशन डोनेशन। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि मेटल लीगेंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एंड दिस रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन बिटवीन मेटल एंड लीगेंड, और विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट विच डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन। तो हमारा क्या है, मेटल ऑर्बिटल जो होगा वो लीगेंड ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्पीसीज हमारे पास जो गिवन थी वो थी MnO4 नेगेटिव। अब ये तो हाईली
इलेक्ट्रॉन एक फिल्ड स्पीसीज है और लोन पेयर हैविंग स्पीसीज है, लोन पेयर हैविंग, ठीक है। तो इसके पास लोन पेयर्स हैं, बट इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि ये किसमें है, +7 स्टेट में है। तो इसके पास नहीं, +5 स्टेट में है, नहीं +7 से, हाँ ये +7 स्टेट में है। तो इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, तो इसके केस में क्या होएगा, इसके केस में लीगेंड जो है वो लीगेंड है, लीगेंड टू मेटल ट्रांसफर होगा, हलवा। तो अगर हम देखें हमारे ऑप्शन से मैच करें, तो हमारा पहला ऑप्शन है मेटल टू लीगेंड ऑर्बिटल, लीगेंड टू मेटल ऑर्बिटल, सो करेक्ट आंसर इज ए। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पूछता है कि बॉन्ड एनर्जी बिटवीन कार्बन एंड सल्फर बॉन्ड, कार्बन एंड टेलीरियम बॉन्ड, Cl Cl एंड Ff बॉन्ड। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा जो है इसका है ही नहीं बॉन्ड एनर्जी का, ये क्वेश्चन है ओवरलैपिंग का। बेटर ओवरलैप, बेटर बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। हम अगर पहले, सबसे पहले जो ट्रिकी पार्ट होता है वो Cl और Ff के बीच में देखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब Cl और Ff के बीच में जब हम देखें तो सबसे ज्यादा जो है वो किसका होएगा, अगर हम एक रैंडम प्रिडिक्शन करें कि भाई इसका सबसे ज्यादा होएगा या इसका सबसे कम होएगा, तो जो और बॉन्ड डोनेशन है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो Cl बनाता है। क्यों? क्योंकि Ff ऑर्बिटल, Ff bond has lone pair, lone pair repulsion। तो इसमें लोन पेयर रिपल्शन होती है। क्यों? F का साइज स्मॉल है, लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर है, तो क्या होएगा, दो बॉन्ड बनेगा तो रिपल्शन। कंपैरेटिवली Cl का साइज ज्यादा है, ठीक है, लोन पेयर भी है, रिपल्शन कम है, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो ऑर्डर भी होता है वो यही होता है, Cl Br देन Ff एंड देन Ii इन हेलोजेंस, ठीक है। तो इसके अगर हम देखें अकॉर्डिंगली, तो लास्ट के दोनों ऑप्शन तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर देते हैं। अब बात रह गई पहले दोनों ऑप्शन में। अगर हम देखें कोई भी ऑर्बिटल, हम देखते हैं कि ओवरलैप कब हो सकता है, जब दोनों का साइज डिफरेंस काफी कम हो। मतलब ओवरलैप ऐसा ही हो सकता है ना, अगर हम एक हाथ को दूसरे हाथ पे ओवरलैप करें तो उन दोनों का बैलेंस, वो साइज इक्विवेलेंस भी तो होना चाहिए, थोड़ा मैच तो करना चाहिए। अगर हम देखें कार्बन ऑर्बिटल का साइज ऐसा है और बाई बॉन्ड बनाते टाइम, और सल्फर का साइज कुछ ऐसा है, तो ये कुछ ऐसी ओवरलैपिंग करेगा। और हम देखें कार्बन का साइज ऐसा है और टेलीरियम का साइज जो है वो ऐसा है, तो कौन सा बेटर ओवरलैप होगा? ऑब्वियसली बेटर ओवरलैप, ठीक है। सो बेसिकली ओवरलैपिंग की दो कंडीशंस भी होती हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बिलोंग टू डिफरेंट शेल्स इन, देन द लोअर वैल्यू ऑफ n विल मेक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, ठीक है। जिसकी लोअर वैल्यू होगी n की, वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनाएगा। ऑल्सो इफ द ऑर्बिटल्स बिलोंग टू सेम शेल, if the orbitals are same shell, then the order of effective overlap will be P S D F। ये हमें स्टैंडर्ड नॉलेज, जब हम लेक्चर्स के दौरान जाते हैं तो हमें यही बताया जाता है कि स्ट्रॉन्ग ओवरलैप इसका होएगा। तो बेसिकली जो दो साइज सेम होंगे उनका तो ओवरलैप ज्यादा अच्छे से होएगा, तो इसका आंसर हो गया ए। पांचों क्या बात है, सारे ए ही आंसर ठीक होते आ रहे हैं हमारे। हाँ, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें लग सकता है कि कंफ्यूजिंग है। कैसे कंफ्यूजिंग है? अब ये जो स्पीसीज है ये है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमीन, ठीक है। ये है टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है, ब्रोमाइड, ठीक है, ये ऐसी स्पीसीज है। अब ये इनोलिक OH है, इनोलिक OH, ये हो सकता है अल्कोहल वगैरह से, कहीं से किधर से आया हो, मे बी फ्रॉम इथेनॉल वगैरह से, इथेनॉलिक KOH वगैरह से रिलीज हुआ हो, K+OH- से ये आया हो, ठीक है। इसने बोला है कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनता है और ये प्रोडक्ट बनता है। बेसिकली अगर तुम देखो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी थ्योरेटिकल नॉलेज से ही सॉल्व हो जाते हैं।
अब अगर तुम देखो इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे के दिमाग में आए, जब इथेनॉल KOH होता है और ये स्पीसीज होती है तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनता है। अगर हमारे पास में ऐसा कुछ है और ऐसा है तो हमें प्रोडक्ट कुछ ऐसा या ऐसा, मतलब कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट ही मिलना चाहिए ना, कि ऐसा हो, इस टाइप का प्रोडक्ट मेजर। बट तुम देखो इन्होंने मेजर की बात ही नहीं करी है, यहाँ पे इन्होंने बात करी है माइनर प्रोडक्ट की। माइनर प्रोडक्ट की क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है तो कुछ परसेंट तो सब्सटीट्यूशन भी होता है, सब्सटीट्यूशन ऑल्सो देयर। ठीक है, सब्सटीट्यूशन होएगा, तो सब्सटीट्यूशन होएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऐसे, और हमें जैसे हमें दिया हुआ है ये इधर OH, तो बेसिकली इट्स अ सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, ये सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है। अब अगर हम सब्सटीट्यूशन की तरफ देखें तो बेसिकली यहाँ बात किसकी हुई है, सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। बच्चे के ढूंढेंगे इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन, क्यों जनरली होता ही एलिमिनेशन है। अब अगर हम देखें, हम इन ऑप्शंस को धीरे धीरे देखना शुरू करें, इन्हें बोला कि कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हम सब्सटीट्यूशन भी देखें तो सब्सटीट्यूशन दो तरीके से होता है, SN2 मैकेनिज्म से और SN1 मैकेनिज्म से। ये होता है बायमोलिक्यूलर, ये होता है यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है, इसी तरीके से होता है। अगर हम इसमें देखें तो हमारी स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं। सपोज हम उठा के देखते हैं हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट, द रिएक्शन रेट डिक्रीजेज अपॉन चेंजिंग द सॉल्वेंट फ्रॉम इथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल इन वाटर। सो बेसिकली इट्स मोर प्रोटिक, अल्कोहल है और उसमें हम पानी भी मिला रहे हैं, H+ और डाल रहे हैं, तो प्रोटिक तो बढ़ जाएगा ना उसका, प्रोटिक नेचर जो उसका। और हमें पता है अगर प्रोटिक नेचर, अब इसमें अगर देखें हम तो क्या इसमें SN2 पॉसिबल है, बल्कि सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है, बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप में SN2 नहीं होती है। ठीक है, SN2 नहीं होती है, SN2 नहीं होती है तो क्या होता है, SN2 नहीं हो रही, इसका मतलब SN1 से मैकेनिज्म हो रहा है। SN1 में क्या होता है, अगर प्रोटिक नेचर का होता है तो रिएक्शन फास्ट होती है। ठीक है, रिएक्शन फास्ट होती है, बट ये कह रहा है रिएक्शन रेट डिक्रीजेस, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। अगली देखते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज अपॉन इंक्रीजिंग द हाइड्रोक्साइड आयन। सही बात है, SN1 के केस में जो रेट है वो सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड करता है, OH- पे नहीं करता है, तो ये भी ठीक बात है, तो ये गलत तो नहीं हुई। द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन द डिसोसिएशन स्टेप इज टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होएगा जब यहाँ से ये ब्रोमाइड जो है, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन बनता है, क्योंकि ये एक सेकंड में अच्छे से लिखूं, तो ये कार्बोकैटायन बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है, सेकंड स्टेप में हमारे पास OH अटैक करेगा और यहाँ पे बन जाएगा, तो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये दोनों हमारे लिए नहीं है। द रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसकी मैंने जैसे बताया कि इसकी कंसंट्रेशन डिपेंड करेगी, तो इसकी नहीं करेगी, तो इस वजह से ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब गलत स्टेटमेंट सिर्फ पहली वाली है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए पार्ट। IIT केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन ए पार्ट आंसर है क्या भाई। अब हम देखते हैं कायरलिटी पूछी है इसने। कायरलिटी पता लगाने के बहुत तरीके हैं, हम इसे अगर स्टीरियोकेमिकली ड्रॉ करें एंड देन उसके थ्रू सेंटर्स कैलकुलेट करें। ठीक है, और इसका सबसे इजी वे रहता है कि हम इसमें POS देखें, COS देखें, बेसिकली सिमेट्री चेक करें। ठीक है, जिसके अंदर सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है, वो कायरल होगा, जिसके अंदर सिमेट्री होगी वो नॉन कायरल होएगा। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब हम अपने डी ऑप्शन से देखते हैं, अगर हम इसमें कोई भी ऐसे प्लेन पास कराते हैं, प्लेन पास कराते हैं तो इसकी ये रही सिमेट्री, और ये जो है अगर हम प्लेन ऐसे पड़ा है तो ये इसका इसका हो रहा है और इसका इसका, और प्लेन में तो ऐसे नीचे हम लेटा हुआ है ना, कोई प्लेन है उसमें ऐसे पड़ा हुआ है और उसमें ऐसे है, तो उसमें एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, तो ये दोनों तो आपस में सेम ही उसके हुए, सेम ही वो सिमेट्री हुई ना, तो ये तो नॉन कायरल है, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इसमें ये स्पीशीज दी हुई है, इसमें भी हम प्लेन डिवाइड करके देखते हैं, तो इसमें ये
ये, ठीक है, और ये और ये और ये। अब इसमें भी पीओएस है, पीओएस तो इसमें भी लग रही है, ठीक है, तो पीओएस इसमें भी लग रही है। अगर इसमें भी पीओएस लग रही है तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हुआ, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो अगर हम जैसे अगर आगे जाएं, इस केस में अगर तुम देखो तो सीओएस भी लग रही है, ऐसे नीचे से हाइड्रोजन जा रहा है और उधर तक हाइड्रोजन जा रहा है, तो इस केस में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। दोनों में इसमें सीओएस भी प्रेजेंट है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास सीओएस भी है इस केस में। तो हमारे पास क्या बच गया, ऊपर वाले दो केस बच गए, ठीक है, ऊपर वाले दो केस बच गए। तो अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो अगर हम इस वाले में देखें तो दोनों नीचे वाले में तो सीओएस नहीं थी, हमारे पास सिर्फ पीओएस पीओएस थी, लेकिन ऊपर वाले में हमारे पास क्या है, सीओएस भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो सीओएस भी प्रेजेंट है। अगर इसमें देखें प्लेन डिवाइड कराएं तो इसमें अगेन वही सिमेट्री 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 सिमेट्री, तो पीओएस, ठीक है, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। अगर हम इसमें कराएं तो इसके केस में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, इसके केस में हमें सीओएस दिख सकती है बट पीओएस नहीं है। पीओएस नहीं है इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली अगर ये एक्टिव है तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर कोई वो नहीं हुई। अब अगर हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें क्या दिखता है, जैसे कि इसके अंदर हम एक बार दोबारा से इसको चेक करते हैं ऑप्शंस को। ऐसे नीचे तो ये सीओएस दिख रही है हमें, ठीक है, ये दोनों अपोजिट प्लेन दिख रहा है, ये भी हमें सेम दिख रहा है, मिरर इमेजेस दिख रही हैं दोनों तरफ, ठीक है, और ऐसे भी हमें वो दिख रहा है, बट इसके केस में हमें वो नहीं दिख रहा है ना। तो हमारा ये वाला जो है ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, ये क्वेश्चन है तुम्हारा वेट लैब से रिलेटेड। अब वेट लैब से रिलेटेड किस तरीके से है, क्योंकि इसमें तुम्हें दिए हुए हैं दो कंपाउंड, ए कंपाउंड और बी कंपाउंड। अब बेसिकली आओ अगर मैं तुम्हें थोड़ा बेसिक आइडिया दूं, टीएलसी का क्या होती है। टीएलसी, तो टीएलसी एक ऐसे एल्यूमिनियम प्लेट होती है, एल्यूमिनियम प्लेट, जिस पे हम कुछ ड्रॉप ऑफ अपना कंपाउंड यहाँ पे प्लेस करते हैं और किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में रन कराते हैं। पर्टिकुलर सॉल्वेंट रन कराते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्वेंट में रन कराएंगे तो आफ्टर कुछ टाइम के बाद जो टीएलसी कंडीशन होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक नीचे भी हो सकता है, ये मैं एक रैंडम बता रहा हूँ, सॉल्वेंट यहाँ तक चढ़ेगा। इसको बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट, जैसे इनने बताया हुआ हमें। और ये एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है। ये जो नेचर है ये डिपेंड करता है उसकी पोलैरिटी पे, ठीक है, सॉल्वेंट कंपाउंड नेचर, कंपाउंड नेचर डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी। ठीक है, पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर हम देखें जो मोर पोलर कंपाउंड है सिलिका उसे नीचे होल्ड करके रखेगी, वो ज्यादा ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि उसके अंदर इतनी पोलैरिटी नहीं होगी, क्योंकि ये तो, ठीक है, तो इसलिए मोर पोलर बिलो हाई पोलर, सॉरी लेस पोलर अबव। अगर ऐसा है तो इसमें क्या दिख रहा है हमें, बी ज्यादा पोलर है, बी इज मोर पोलर देन ए, ठीक है, ए इज लेस पोलर, मोर पोलर, ठीक है। अब अगर आर एफ वैल्यू देखें तो आर एफ वैल्यू तो सेम फॉर्मूला है, डिस्टेंस बाय कंपाउंड बाय डिस्टेंस बाय सॉल्वेंट। सॉल्वेंट डिस्टेंस बाय कंपाउंड ए का अगर हम निकालें तो 3.75 डिवाइडेड बाय में 5, फिर हो जाएगा 0.75। करेक्ट आंसर इज ए। हलवे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन है मिक्सचर ऑफ
Cannizzaro reaction and intramolecular esterification। ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इंट्रामोलिकुलर कन्वर्जन हो रही है और इसमें एस्टेरिफिकेशन हो रही है, तो इस चीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम इसमें देखें, इसका पहला पार्ट देखें, तो कंफ्यूजन यहाँ क्या होगी बच्चों को, एक तरफ तो ड्यूटेरियम लगा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है। सो कैनिजारो रिएक्शन किस पे होती है, डिपेंड करती है इलेक्ट्रोफिलिसिटी नेचर पे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल उस पर डिपेंड करेगी। ऐसा तो है नहीं दोनों पे हो जाएगी, ऑप्शंस में नहीं दिख रहा दोनों पे हो जाएगी, तो एक पे ही होएगी। तो हमें पता है कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो ट्रिटियम का सबसे ज्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम का होता है, फिर हाइड प्रोटॉन का होता है। ड्यू टू दैट ये जो होगा लेस इलेक्ट्रोफिलिक होएगा और ये क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है। एज मैंने यहाँ पे बताया भी है कि कैनिजारो रिएक्शन ये होती है तुम्हारा, बेसिकली दिस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक एसिड में, या फिर कह सकते हैं सॉल्ट ऑफ एसिड में भी, मतलब ये इस टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, ये भी बन सकता है। तो अगर ये सबसे ज्यादा ये कम मोर इलेक्ट्रो, ये बहुत सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, तो यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म होएगा। अब यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म होएगा तो हमारे को ऑप्शंस में कौन सा दिख रहा है, जब यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म हो रहा है तो पहला दिख रहा है, और एक हमें सी ऑप्शन दिख रहा है, एक हमें डी ऑप्शन दिख रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन कट जाएगा, और हमारा भाई क्या कहते हैं ए बी कट जाएगा और सी कट जाएगा। ये दो ऑप्शन कट गए, और बस बचा ए और डी। अब हमारे पास आ गई है ये स्पीसीज, इसका मैकेनिज्म बना है, मैकेनिज्म से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऐसे डी, ये ओ एच यहाँ अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, ये बाहर जाएगा, जब नीचे आएगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा ही बनेगा। एस्टर, आंसर क्या हो गया हमारा इसके हिसाब से, ए ऑप्शन। क्या मतलब सबका ये आंसर ये आ रहा है, गजब, ये टीम पेपर सेट किया यार। अब इसमें हमें बताना है कि पीकेबी जो है वो किस, पीकेबी का ऑर्डर क्या होगा, तो पीकेबी क्या होता है, माइनस लॉग के बी, जैसे लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। ठीक है। अब हम देखें तो ये क्या एक्वस मीडियम में जाते ही बच्चे सोचेंगे कि भाई अनिल है, अमीन है, प्राइमरी अमीन है, ये है वो है, उसके अकॉर्डिंगली 2 1 3 ऑर्डर लगाएंगे, ये लगाएंगे वो लगाएंगे। ऐसा नहीं होता, हमें स्टैंडर्ड तरीके से नहीं जाना। हम बेसिकली ये एनिलीन्स दिए हुए हैं, सारे सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स हैं। अगर हम इसको हम लिखें तो हमारा पहला जो पी है वो क्या है, वो है ये, ठीक है, ये पी है। उसके बाद हमारा क्या है, ये है, ये क्यू है, फिर हमारा आर है, वो क्या है, अगर हम लिखें तो इसमें NH2 दिया हुआ है, ठीक है, और एक लास्ट वाला एनिलीन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास CH3 है, और ये कुछ नहीं है यहाँ पे, थोड़ी गलती हो गई, फिर से करते हैं, ये ऐसे, ठीक है, ये हो गया, और इधर ये NH2 हो गया, और अगर जो हमारा ये R है और ये ऐसे क्या एस हो जाएगा हमारे पास में NH2, ठीक है, ये हमारे पास S हो जाएगा। अब ये जो हो गया हमारे पास में, इस केस में हम देखें तो सबसे बेसिक तो ये है,
सबसे बेसिक कौन सा हुआ, इसमें CH3 ग्रुप भी आ रहा है और अमीन ग्रुप भी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा सबसे ज्यादा का वो NH2 जो है, जो सबसे ज्यादा मतलब ये होगा बेस। NH2 तो बेसिक नेचर का ही होता है, सबको पता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इस पे, सबसे ज्यादा बेसिक तो ये होएगा। ठीक है, उसके बाद उससे ज्यादा बेसिक कौन सा है, अगर यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर इधर से भी डोनेशन मिलेगा इधर से ही मिलेगा। ठीक है, ये तो लोकलाइज्ड है, और ये सब क्या है, डीलोकलाइज, डीलोकलाइज, तो इसको मिलेगा। सबसे ज्यादा अगर हम देखें बेसिसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पी के बी से। अगर बेसिसिटी ज्यादा है तो पी के बी ऑब्वियसली कम है, अगर बेसिसिटी ज्यादा है तो। क्यों? क्योंकि अगर बेसिसिटी ज्यादा है तो के बी ज्यादा है, के बी ज्यादा है तो पी के बी ऑब्वियसली कम आएगा। ठीक है, ऐसा है, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक हुआ, तो इसका पी के बी सबसे कम होएगा, सबसे कम पी के बी होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास बच जाएगा RSQ। अब इसमें देखें तो सबसे ज्यादा बेसिक तो ये होएगा कि पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा ये प्रोवाइड करा सकता है, आर वाला। क्यू वाले में तो एक प्रोटॉन भी तो है ना, इसमें दो CH3 ग्रुप हैं, CH3 का प्लस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो अगर ये लगेगा तो ये आर सबसे ज्यादा आर होएगा, तो इसका मतलब पी के भी इसका उससे कम होएगा। तो अगर यहीं से अंदाजा लगाएं तो सीधा पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि और उसके बाद एस तो जो है वो सबसे कम बेसिक है, लीस्ट बेसिक। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या ही होगा, कौन ही डिलोकलाइज कराएगा, कुछ नहीं होएगा, तो इसका आंसर बी ए ऑप्शन है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो ये थोड़ा हमारा आ गया फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट। अगर हम देखें इसमें हमें एक एक चीज पढ़ पढ़ के गिवन, सबसे पहले हमें क्या करना है, पेपर में जाते गिवन लिखना है यार। गिवन लिखेंगे तो गिवन लिख के अच्छे से होएगा। सबसे पहले दे रखा है V1 जो दे रखा है वो 100 ml दे रखा है, M1 जो दे रखा है वो 1 मोलर दे रखा है। ठीक है, वो चार्जिंग खत्म हो गई। M1 जो दे रखा है वो 1 मोलर दे रखा है NaOH सॉल्यूशन का, और वो डाइल्यूट कर दिया बाद में 1 लीटर तक। ठीक है, अब इन्हें क्या बोला कि M1 जो है वो 1 मोलर दे रखा है। ठीक है, और V2 जो है इन्हें बाद में डाइल्यूट करके 1 लीटर कर दिया, दैट इज 1000 ml। ठीक है, ये कर दिया इनने। अब ये इनने कर दिया, और हमें निकालनी है M2 पहले। ठीक है, M2 निकालते हैं, तो बेसिक फॉर्मूला जो हमें पता है डाइल्यूशन के टाइम पे होता है वो M1V1 इजिकल्स टू M2V2। तो 1 × 100 इजिकल्स टू 1000 इंटू में V2, तो V2 हमारे पास, सॉरी M2, तो M2 हमारे पास में आ जाएगा 0.01 मोलर। ये हो गई कंसेंट्रेशन। तो इन्होंने बोला बाय एडिंग हाफ ऑफ द सॉल्यूशन वाज डिस्कार्डेड। अब इतना बना लिया, इतनी कंसेंट्रेशन बना ली नींबू पानी की इनने, और नींबू पानी बोला भाई आधा फेंक दो। अब हम आधा फेंक दें चाहे कितना ही फेंक दें, अगर मैंने 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट डाला है 1 ग्लास ऑफ वाटर में, और उसे यूनिफॉर्मली डिजोल्व कर दी, वो यूनिफॉर्मली डिजोल्व हो जाएगा, सैंड तो है नहीं कि नीचे बैठ जाएगा, उसकी कंसेंट्रेशन डिफर करेगी। यूनिफॉर्मली डिजोल्व कर दिया तो पूरे में बराबर होएगा। अगर पूरे में बराबर होएगा तो वो क्या हो जाएगा, हाफ होएगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम ही तो हाफ होएगी, तो V3 जो आएगा नया वो 500 ml आएगा, बट M2 तो वही होएगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि अ न्यू 100 ml एंड 0.5 ml of the solution of any solution was added to the remaining solution, what is the concentration of the solution। अब इन्होंने बोला कि भाई न्यू वॉल्यूम जो है वो 100 ml ऐड हुई है उसमें। ठीक है, और जो M2 है उसका वो है 0.5 मोलर, ये हुआ है। तो जो नई हमारे पास वो आएगी, क्या कहते हैं, अब तुम्हारा बता, नई जो वो आएगी मोलैरिटी आएगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो जब हम मिक्सिंग के केस में जाते हैं तो मिक्सिंग के केस का फॉर्मूला क्या होता है, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू M3V3, और V3 जो होता है वो V1 प्लस V2 होता है। ठीक है, अगर हम M1V1 जाएं तो M1V1 क्या है हमारे पास में, 0.01 इंटू 500 प्लस 100 इंटू में 0.5 इज इक्वल्स टू M3 इंटू में नियर अबाउट ला लो V3, और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर नियर बाय आ जाएगा M3 इज इक्वल्स टू 0.1666। ये मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया है, तुम अगर सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट इसका है, तो इसका हम जो कर राउंड ऑफ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इसके बाद अगर हम जाएं अगले क्वेश्चन पे,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे को सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगा। बेस्ट क्वेश्चन, बच्चे ऑर्गेनिक को बता रहे थे, बट मेरा पर्सनल अगर मैं जाऊं तो तुम ये कह लो मुझे फिजिकल पसंद है या कुछ भी पसंद है, बट दिस इज द क्वेश्चन जहां बच्चे को थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जनरली बच्चों के दिमाग में क्या होता है, कंप्रेशन का हो गया या फिर कुछ भी हो गया, या कार्नोट इंजन ही याद नहीं होता, इसको गैसीय स्टेट से रिलेट कर देते हैं। तो बट वैसा नहीं है। अब अगर हम देखें, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, आइडियल गैस है जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन दिखाती है बाय द एंड फॉलोड बाय रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो अगर हम पीवी कर्व देखें तो पीवी क्या होता है, पीवी इज इक्वल्स टू तुम्हारा गामा की फॉर्म में होता है वो। ठीक है, जो पीवी का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, पीवी इज इक्वल्स टू के, पीवी गामा इज इक्वल्स टू के। इसका ये गामा क्या होता है, सीपी बाय सीवी होता है ये। और ये कार्नोट इंजन के उसमें है, फॉर्मूला में तुम देखोगे जैसे कि स्लोप क्या कहते हैं, डिक्रीज होता है वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ, बट स्टेप इसका ऊपर होता है, स्टेप अप स्लोप होता है। तो ये ऐसे डिक्रीज करेगा, ये तो ठीक है। और जब एडियाबैटिक एक्सप्रेशन जो होएगा तो वो ऐसे 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 करके डिक्रीज होएगा, ये भी ठीक है। ये तो आइसोथर्मल के केस में एक्यूरेट है, आइसोथर्मल के केस में एक्यूरेट है, और ये एडियाबैटिक के केस में एक्यूरेट है। अब अगर हम जाते हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे अब हम इसी से अंदाजा लगाएं कि अगर एडियाबैटिक के केस में ये ऐसे डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम के बढ़ने पे, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो भाई अगर वॉल्यूम पी, अगर हम 1/v का भी ग्राफ अगर बनाएं तो 1/v के ग्राफ में और या फिर 1/p के ग्राफ में इसमें डिफर करेगा। सबसे पहले अगर हम इसका t/v का देखते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन केस में, तो ये कांस्टेंट रहा। अच्छा, ठीक है, यहीं से इसकी मिस्टेक यहाँ तक तो ठीक है। बट जब इसने वॉल्यूम बढ़ाई, वॉल्यूम बढ़ाई, वॉल्यूम बढ़ाने के बाद जो है ये एडियाबैटिक के केस में, वॉल्यूम बढ़ाने के बाद एडियाबैटिक के केस में क्या हुआ, ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ा, ऊपर बढ़ा तो भाई ये स्लोप बढ़ा। ठीक है, अगर हमने देखा कि वॉल्यूम इंक्रीज हुई, ठीक है, बट ठीक है टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो एडियाबैटिक के केस में क्या होता है, वर्क डन जो हमारा होता है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, इतना हमें पता होता है। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू जीरो होता है इसके केस में। तो हमारा वर्क डन जो हो गया वो इंटरनल एनर्जी के बराबर आ गया। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी के बराबर आ गया, तो क्या वो एडियाबैटिक के केस में टेम्परेचर के साथ साथ ऐसे ऊपर स्लोप बढ़ेगा? तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा, तो नेगेटिव थोड़ी होगी। अगर नेगेटिव नहीं होगी तो इसका मतलब जो है उसका जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से नीचे आना चाहिए था, ताकि डिक्रीज करना चाहिए था साथ साथ में। तो ये हमारा गलत आंसर है। अगर हम, जैसे मैं 1/v p1 की बात कर रहा था, तो ये जो क्वेश्चन है जिसमें 1/v के फॉर्म में दे रखा है, ये तुमने देखा कि यहाँ पे ये ग्रेडियंट ठीक है, ये एडियाबैटिक का माने मान लिया, बट स्टार्टिंग में हमें पता है कि ये दोनों सेम ही है। अगर तुम देखो वाइस वर्सा ही है। अगर स्टार्टिंग में p/1/v है, तो ये अगर नीचे से शुरू हो रहा है तो ये ऐसे नीचे थोड़ी जाएगा, फिर ये भी तो ऐसे ऊपर जाना चाहिए। अगर रिवर्स ही हो रहा है, इनवर्स ग्राफ तुम किसी का ही बना रहे हो, तो दिस ग्राफ वुड बी लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन वो इस तरीके से 1/v के केस में, तो ये भी गलत है। अब आते हैं हम इसके केस में। इसके केस में क्या होता है कि भाई प्रेशर तो बढ़ रहा है ऊपर, ठीक है, और टेम्परेचर, आई सर भाई सबसे पहले तो हमने देखा कि प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर का क्या सीन है। अगर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, और या फिर प्रेशर घट रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रही है। ठीक है, प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रही है। अब यहाँ पे हम देखो प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, तो टेम्परेचर भी घट रहा है, ये ठीक है। और तुमने देखा कि जैसे जैसे प्रेशर घटता गया तो ये कर्व इस तरीके से बेंड होता गया कि वॉल्यूम बढ़ती गई और टेम्परेचर जो है वो घटता गया। यही चीज तो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वॉल्यूम भी बढ़ रही है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, फिर वो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, तो इसलिए इंटरनल एनर्जी डिक्रीज नहीं कर सकती। इसलिए इसके जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वो होंगे फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। हमारा आंसर होगा ये। अब इसके बाद अगर जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बेसिकली डायरेक्टली देगा रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 b3 पॉजिटिव टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव। ठीक है, अब ये किस तरीके से बताया जाएगा, तो बोहर के जो फॉर्मूले होते हैं उसमें वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁻⁶ दिस एंड डिपेंड ऑन दिस। ठीक है,
ये होता है कौन सा ऑर्बिट है, और ये चार्ज क्या है उस पे, ठीक है, ये दोनों उस पर डिपेंड है, जेड बाई एन होता है। अब तुम देखो, तुम्हें बस रेशियो पूछा है, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट डिफिकल्ट रूल नहीं है। तो अब बोला है तो बीई थ्री प्लस में जाते हैं अगर हम, तो बीई थ्री प्लस जो होता है वो हम अगर जाएं तो बी थ्री प्लस तुम देखो, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये फोर आया, तो जेड इसका फोर है। ठीक है, ऑर्बिटल कौन सा है, फोर्थ ऑर्बिट, एन भी फोर है, जेड भी फोर आ गया, एन भी फोर आ गया। ठीक है, तो जेड भी फोर, एन भी फोर, और उसका दूसरा है रेशियो ऑफ हीलियम पॉजिटिव, ठीक है, एन भी फोर है। ठीक है, उसके बाद आ गया हीलियम पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव के केस में क्या आएगा, जेड जो है वो, अगर हाइड्रोजन हीलियम तो जेड टू है, और कौन सा ऑर्बिट में बोला, सेकंड ऑर्बिट में, तो एन बी टू है। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ बेरिलियम देखें, बेरिलियम थ्री पॉजिटिव देखें, तो वो क्या आएगी बेसिकली, कांस्टेंट इनटू में फोर बाय फोर। ठीक, और वेलोसिटी ऑफ हीलियम पॉजिटिव जो होगी वो होगी कांस्टेंट इनटू में टू बाय टू। ठीक है, रेशियो निकालना है, बेरिलियम थ्री पॉजिटिव बाय में बेरिलियम हीलियम पॉजिटिव। ठीक है, हो जाए, कांस्टेंट तो सेम है तो कट जाएगा, ठीक है, फोर बाय फोर डिवाइड बाय टू, आंसर वन रेशो वन। सिंपल, हलवा क्वेश्चन भाई, हलवा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। मतलब तुम देखो तो 90% ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आंसर तो यही आता जा रहा है सबको, अगर हम ऊपर से देखें, अभी इसका भी ए आया, ठीक है, करेक्ट कौन से हैं, फिर इसका भी ए आया 0.17 0.166 आया, तो इसका भी ए आया, फिर तुमने देखा इसका भी ए आया, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन हैज आंसर ए। तो ये कोई अगर किसी बच्चे ने ए तुक्का मारा होगा तो उसका लग गया होगा, अदरवाइज जैसी करनी वैसी भरनी, तुमने मेहनत नहीं करी तो नहीं हुआ होगा। अब हम जाते हैं अगर अगले क्वेश्चन की तरफ, तो हम देखते हैं हमारे पास आता है, ये क्वेश्चन हमने हो गया, हमारा आता है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन जो है वो बोलता है टू प्योर वोलेटाइल लिक्विड है एक्स एंड वाई, प्योर है, एक एक वर्ड पकड़ेंगे, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ऑफ बोथ एक्स एक्स एंड वाई वाई आर वीकर देन दोज ऑफ एक्स वाई एंड टोटल। ठीक है, तो ने बोला कि एक्स एक्स की जो इंटरेक्शन है या एक्स वाई वाई की जो इंटरेक्शन है वो वीकर है एक्स वाई से, मतलब एक्स वाई की जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा है एक्स एक्स से और वाई वाई से, बेसिकली राउल्स लॉ लग रहा है। ठीक है, सीधा सीधा पता चल रहा है कि जब इसकी इंटरेक्शन ज्यादा है तो इसकी कम है, तो क्या होगा, और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इज पी टोटल। ठीक है, ये है, तो मैंने बताया कि इंटरेक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एक नेगेटिव डेविएशन का केस है। नेगेटिव डेविएशन में हमें ये पढ़ा है कि ए की इंटरेक्शन बी की इंटरेक्शन जो होती है वो कम होती है किससे, ए बी से, यही होता है ना। इसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होता है घटता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इसी केस में यही होता है, एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। तो अब इसका क्या है, अगर हम इसे लिखें तो इन्होंने बोला कि जो पी टोटल है, वेपर प्रेशर जो है एक्स वाई का, वो पी टोटल से रिप्रेजेंट होता है, पी टोटल। ठीक है, पी टोटल का होएगा, अब पी टोटल आएगा तो इसका मतलब जो इंडिविजुअल का वेपर प्रेशर होएगा वो किस तरीके से बताया जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द एक्स वाई प्योर, ये जो है पी नॉट और एक्स नॉट से बताया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अभी ने बोला कौन सा करेक्ट है, बोला कि इक्विमोलर भी है। ठीक है, यहाँ पे इन्हें बोला कि ये इक्विमोलर सॉल्यूशन है, मतलब मोल फ्रैक्शन दोनों का एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स बी है, तो एक्स ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स बी, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर इस तरीके से लिख सकते हैं तो राउल्स लॉ का फॉर्मूला ये होता है, तो अगर हम पी टी लिखना चाहें तो पी टी जो होएगा वो ज्यादा होएगा, किसका किससे ज्यादा होएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी बाई टू, ये होएगा। ठीक है, तो इसके केस में अगर ये मतलब ये बेसिकली बाय टू आ जाएगा, तो एक्स ए तो हम अगर हटा ही दें, तो एक्स ए को अगर लेट्स से अगर हम इसको रिप्लेस कर दें जैसे हमने क्वेश्चन में किया हुआ है आंसर में, तो क्या होएगा, पी एक्स नॉट प्लस पी वाई नॉट डिवाइड बाई टू, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद आता है हमारे पास में, तो ये भी हलवा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था भाई साहब ये तो। उसके बाद आ जाएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है
ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो अगर इसमें हम देखें तो बेसिकली देखते ही क्वेश्चन समझ आया। एक्टिवेशन एनर्जी अरीनियस क्वेश्चन, अरीनियस क्वेश्चन भाई साहब, अरीनियस क्वेश्चन, अरीनियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चीजें लिखो, टेम्परेचर T1 दे रखा है 600 केल्विन, ओके। ले एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है 191.47 किलो जूल। किलो जूल में पहले ही जूल में कर लेते हैं भाई, बाद का रिस्क ही नहीं लेना। जूल पर मोल, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी K1 दे रखा है हमारे को 5 × 10⁻⁵। इन्हें बोला क्या क्या टेम्परेचर होएगा जिसपे हाफ लाइफ जो होगी रिएक्शन की वो 152 सेकंड होगी। अब फर्स्ट ऑर्डर केस में, क्योंकि सेकंड इनवर्स में दे रखा है, तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर, अब फर्स्ट ऑर्डर के केस में, फर्स्ट ऑर्डर में ऑर्डर केस हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू में 0.693 डिवाइडेड बाय K इज इक्वल्स टू T। मतलब ये हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ। अब इन्हें दे रखा है K निकालना है हमें, 0.693 डिवाइड बाय में हमें हाफ लाइफ दे रखे 152। तो K जो है वो नियर अबाउट जो K डैश आएगा, K डैश हमारा जो नियर अबाउट आएगा जो मैंने कैलकुलेट किया था वो आएगा 455 × 10⁻⁵, या फिर हम लिख सकते हैं इसे 4.55 × 10⁻³ समथिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ से K डैश निकाल लिया, तो ये हो गया 452 में 10⁻³ और 455 × 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स अगर हमें 0.555 की और चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड अरेनियस इक्वेशन होती है जो K1 K2 के फॉर्म में होती है, उसको अगर हम लिखें तो क्या होती है, log K1 by K2 इज इक्वल्स टू में EA by 2.303 RT। तो T क्या होता है, 1/T1 - 1/T2। तो हमारे पास में K1 है, तो log K1 क्या है, 5 × 10⁻⁴ नहीं, log K2 by K1 होता है, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, log K2, log K2 है 455 × 10⁻⁵, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ऊपर क्या दे रखा हम चेक कर लेते हैं। हाँ, तो अगर हम इसे देखें तो हमारे पास दे रखा है 10⁻⁵ बाय में 5 × 10⁻⁵, 5 से 5 कट गया, ये इसे करेंगे। EA हमें दे रखी है 191 पॉइंट, हमने ऊपर कैलकुलेट की थी 47 × 10⁻³ ठीक है। अगर हम इसे हटा दें यहाँ से, और फिर उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे 2.303 × 8.314 इंटू में अगर हम 1/T1 करें तो T1 क्या है हमारा 600, 1/600 माइनस में 1/में T2। अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा समवेयर अराउंड -1.955 इज इक्वल्स टू में 10⁻⁴ समवेयर, एंड दिस इज, अगर हम इसे सॉल्व करें तो इस एक्सप्रेशन को, तो ये कुछ सड़ा सा एक्सप्रेशन बनेगा जो तुम्हें खुद सॉल्व करने को दूंगा, मैं खुद नहीं सॉल्व कर रहा। ये हो जाएगा माय बैड, 10⁻⁴ तो ये हो जाएगा 1/T2 इज इक्वल टू में 1/600 माइनस में, सॉरी प्लस में 1/955 समथिंग। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये 1/T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/600 माइनस 0.00019। T2 आ जाएगा 677, नहीं ये 6, T2 जो है हमारा वो आएगा नियर अबाउट, अगर हम देखें तो अगर T2 हमारा आ रहा है नियर अबाउट 679 केल्विन, तो अगर हम इसे देखें तो ये हमारा हो जाएगा 650 केल्विन। तो द आंसर इज सॉल्व। तो इसी के साथ केमिस्ट्री का पार्ट आपका सॉल्व होता है। इसे एक बार थोड़ा रीचेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से जो मैंने सॉल्व करके निकाला है वो यही आया है, 670 नियर अबाउट 679, सो 680। अगर हम देखें तो 15th क्वेश्चन वाज इजी, मतलब फिजिकल जो है वो काफी इजी आई थी कंपैरेटिवली टू दिस क्वेश्चन। इसमें आपका काफी माइंड लगेगा, दिस वाज द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। और टीएलसी एक न्यू कॉन्सेप्ट था, टीएलसी ये पहले आता नहीं है, और ऑर्गेनिक इज टू मच इजी,
टीएलसी हमारा अगर देखें तो टीएलसी जो है वो एक न्यू कॉन्सेप्ट है। और अगर हम इसके बाद ऊपर वाला पार्ट देखें तो ये बाकी सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री से हैं। अगर आई हैव मेड एनी मिस्टेक और ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर, you guys can tag me and I can recheck it again. I have doubt on this question, that is on seventh question. I'll go through it again and then we'll poll you in the Vidyahi's channel. And it's a good question. It's a not a good question. I'll draw it on a paper. It's a new concept, and by this is just to confuse people. About inorganic is too much easy, like too much easy. So the paper level, according to me, is paper was easy